हेलो भाई। So in last lesson we have discussed networking, about networking. Okay, so half chapter we have completed. So today we will discuss some more topic in networking, right? Okay, then after I will show you some videos also during the lesson time. Okay, so first I will explain some topic and then after I will show you some videos of those topics. Clear? Excuse me, sir. Yes. So, I have sent you homework on Edunix. Did you get it? Yes, I got your homework, and today which I taught you, okay, which I will teach you. So those things you will have to write in your copy, and then again you will have to send me. Sir, I have made a big register of computers, not a notebook. Yeah, it's okay. It's okay. It's okay. Excuse me, sir. So yes. So I've just joined the class, so I don't know what you did last time. Okay. I will share notes with you. Okay. Last we had completed only half chapter of this networking, right? Don't worry, I will share the notes of those topics which I have completed, which I have taught you in the last lesson. Clear? So I've come as a guest, so I'm not there on EduNext. Okay, you have to download your EduNext. So I've come as a guest, so I don't have an EduNext ID. Okay, so you have to talk to Mandeep sir. Okay, Mandeep sir, he will provide you ID. So I've come as a guest from other school to just take online classes. Okay, you are guest, so you are not from our school, right? Okay, Yes, so sir. it's not for you. It's not compulsory to make a notes. If you want to make a notes, as you wish, Yes, sir. right? Okay, I thought you are in Bhartiyam. I was- Okay, Dikshant, yes. Yes, sir. There will be sir computer test in PA1. No, 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 not computer test and PA1. Okay, sir. Right. So Dikshant, sharing my screen, so you will tell me it is visible or not, right? Yes, sir. It is visible, Dikshant. Sir, yes, sir. Sir, Okay. it is here. Okay, now I'm going to share with you the notes. Okay, now it is opening. Then we'll start. I will explain it. Okay. Okay, sir. Okay, so in networking today we are going to discuss about the internet. I think all of you know what is internet. Now I'm going to explain what is internet.
Internet is a worldwide system of computer network. I think all of you know what is computer network. Computer network. Do you know what is computer network? Anyone knows computer network? Yes, Prasant and Nikhil Batra. Yes, Nikhil. Sir, I want to ask you something. Yes, ask. Sir, I am new in mission, sir. I don't know what did you teach in last time in Bhatim school. Those who listen. Those students are new. Okay, I want to tell something about the new student. Okay, so student who are taking first class today. So please, you take the notes from the Add to Next, which I had already shared in last week. Okay, so if you have confusion, so you can ask to Mandeep sir. Okay, he will provide you EduNext ID also. Okay, sir. Clear new admissions students. Okay, now internet is worldwide system of computer network. It is the network of network, means network of network. When we connect more than one computer with each other is called a network, right? Those internet, through the internet, computer become able to exchange information with each other. Okay, for example, now I want to show you. This is my computer and this is your computer. Okay, but I want to connect both computer with each other with the wire. Okay, with the wire I am connecting those computers. So this is called a networking. But when we will exchange the information from one computer to another computer, right? First computer, for example, you want to send some information one computer to second computer or another computers. So this is called a transmission of data, means you are transferring your data from one place to another place. For example, you some student, they sent me their homework, right, with the help of internet. If you did not have internet, so it was not you were not able to send me homework, right? With the help of internet, you sent me your homework. Clear? So we can connect the whenever we connect the computer is called a networking. But when we exchange the computer information from one system to another with the help of internet, this is called a internet, because we are sharing the information, right? Shivans, clear? Shivans? Okay, computer become able to exchange information with each other. It is also termed as interconnection of computer network. Okay, interconnection of computer network means all computers are connected with each other. Every computer in the internet is defined by a unique IP address. IP address means internet protocol. The full form of IP is internet protocol. Drishti Tyagi. Gurleen Kaur, what happened, Gurleen? Yes, Gurleen. Yes, sir. Gurleen, you want to say anything? Oh, sir. Sir, you have Why asked you the. raised your hand? Sir, Why you you have raised asked. your hand? Sir, you have asked the question computer network. That's why I have raised the hand to Okay, answer. okay, okay. Excuse me, sir. Now for yes, Sir, yes, please can you yes. give me your number so that you can share the notes with me?
Okay, but I have to take permission from my the means seniors. Then I will tell you, because I can't. We cannot share on the WhatsApp now all the notes. We are sharing on the Endo Next. So every teacher have given me their number. Okay, so take it. My WhatsApp number I'm giving you. Wait a minute. Write down 875546 4288. Done. Yes, sir. Okay. Thanks, Now, sir. yes. Okay. IP address. We were discussing about the IP address. IP address means Internet Protocol. Okay. A unique set of number. This is the unique set of number. Protocol means. Do you know what is the meaning of protocol? Any student? Okay. Aditya Srivastav. Yes, Aditya. Excuse me, sir. Yes. Sir, protocol Adya. means Adya. uniformity in a work. Okay. You can say. And One the question also I have. Tanmay. Tanmay. Yes, sir. So it means the protocol means that stability. Stability. No stability. Protocol means, now I am telling what is protocol. Protocol means set of rules. Okay, set of rules. Whenever your data will transmit from one system to another system with the help of internet, okay, it follow the rules. That is called a protocol. Clear? Protocol means set of rules, right? So which identifies a computer location. Okay, if each and every system has its own IP address. Okay, with the help of this IP address, the data can reach its destination. Destination means suppose you want to send me some data. Okay, so you want to send me one mail or your homework. So I am the destination and you are the source, right? Clear? Then after application of internet means we have a different application in internet. Electronic messaging, which you means nowadays a lot of people are doing electronic messaging, means we can send and receive email to anyone in any part of the world by using the internet. With the help of internet, what we can do, we can send email. Okay, for example, you are sitting in Delhi and I am sitting in Rudrapur, and you are easily you can send me your information via internet or via other medium. For example, WhatsApp, for example, Facebook messaging, right? You can send me, no? Clear, Adya? Okay. Shivans, clear? Shivans, why you are looking somewhere else, right? Your thoughts and whatever you want to say anything to another person, you can send via mail or via messaging. You can send, means with the help of WhatsApp, with the help of Facebook, you can send your message. So this is called electronic messaging.
Clear? If you don't have any internet connection, so it will possible to share your message. It will possible or not? Okay, it will not possible because if we will have internet connection, then we can share our information from one to another, right? So now next is electronic data interchange, EDI. It is the method of sharing data in a digital format over the internet. Okay, digital format means you can share your videos, you can share your photos, right? Nowadays we are sharing with the help of WhatsApp, with the help of Facebook, we can share our photos, videos, right? Clear? So and then teleconfiguration. It allows people to exchange and share their ideas with each other without being present there. It is of two types. Okay, now do you know what is video conferencing? Video conferencing. Okay, who will tell? Uh, Tanmay. Yes, Tanmay, I am coming to you. Wait. Yes. So video conferencing means when like video call means like we are here. Yes, which we are doing right now. Okay, which we are doing right now. Video call, video conferencing we are doing. On WhatsApp you can do video conferencing, right? Clear? So same, audio conferencing is also same, but we cannot see the face in the audio conferencing. We can hear only voice. Okay, in the same time, two, three people, three, four people can communicate with each other. Right? In the phone, I think a lot of students, they have done this. Okay. Now, next is electronic fund transfer. As the word of, according to the word, you can understand electronic fund transfer, EFT. It is the method to transferring money without going to the bank. Okay, nowadays you can easily transform means you can transform money from one place to, means you want to transfer money to your friend, so with the help of your mobile you can easily transfer your money. Okay, so it's not compulsory to you have to go bank. Without going bank, you can transfer data from your home. For example, nowadays you are using Google Pay, right? Paytm, Google Pay, all those apps you are using. So with the help of this, means this is the example of electronic fund transfer, because you are transfer data, transfer money from your home without going bank. Clear? Right? So now ATM is a kind of electronic fund transfer device using to withdraw cash from a bank account. Okay, I think ATM, all of you about the aware about the ATM, automated teller machine, the full form of ATM is. Okay, so then important term related to the internet. Now, number one is URL, Uniform Resource Locator. A URL is a unique identifier or address to locate a resource in the internet. It is also referred to as a web address. You can see here URL HTTP. Whenever you want to search anything, so you have to write this www.bharatiyam-international-school.com. Clear? Okay. Here the HTTP is the protocol. HTTP is the protocol, means rules. Clear, is used to transfer the page, because it will transfer the page, then you will get the another page. When you if you want to search anything about any topic, so you have to write something about the topic, you have to search. Clear, Adya? Okay, wait, I have a video of URL. Now I want to show you this video. Easily you can video, it will visible, so please let me know. Okay,
Okay, Adya? Yes, sir, I have a question. Can I ask? Okay. Yes, yes. Sir, IP address, you told us that it helps us to locate the device. Yes. So then it is not safe also because hackers can also locate our device using IP address. Please repeat your sentence. I did not get your voice clearly. Sir, IP address is used to locate a device. So, sir, then it is not safe also because IP address can also be used by hackers that are Yes, in. they can also use, but each and every system has its own IP address. Okay, IP address means for example your address. Okay, means I want to send something to you. Means I want to send you one book via post. Okay, via post I want to send you, but how you will get it? I should know your address, right? I should know your address where exactly your book should be reach. If I will write your address in the this envelope, then after you will get it easily, and postman he will easily send you your home this book. Okay, right? He will send you easily. Oh, this is the work of IP address also. IP address just like your means your address, and in the computer language, computer system, we use a internet protocol. This is the address of individual system. So, but then also hackers can get it and do anything with our accounts or etc. Wait. I'm just explaining you IP address again. For example, we have a system like here. Okay, this is a server and this is a client. Client means those like you, me, and another person are client, but the main source from where we are getting the information is called a this is called a server. Okay, because we are getting the all information from the main system. So this we I have a three system here. Right, so this is system number one, this is system number one, system number two, and system number three. Right, all systems are connected this server. Clear? So for example, this server want some information. Server number this system number two wants some information from the server. So what it will do, it will send the request to this server, and then how this server will identify, means here we have a three servers, see three systems, three client. So with the help of IP address, means each and every system has his own individual IP address. For example, this has different, this different, and this has different. Okay, so that can this server easily identify this client has sent me a request and I will have to send information. Okay, sir. क्लियर? आईपी एड्रेस के थ्रू ही हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारे इंफॉर्मेशन है उसको उस पर्टिकुलर सिस्टम तक पहुंचाते हैं, Okay. बिकॉज वो एड्रेस है, जैसे आपका एड्रेस है, लाइक राइट. ओके, नाउ आई एम शेयरिंग वन वीडियो विद यू. आई वांट टू शो यू वन वीडियो. ओके, आईपी एड्रेस देख लो पहले, आईपी एड्रेस का देख लेते हैं, देन यूआरएल वी विल चेक. This is you, this is your computer, and this is you watching. What is an IP address? IP addresses represent where you live on the internet, and are needed to send. Now audio or video is visible, audible audio? No? Video is visible, Adya?
Not visible? Then only it is coming computer network class 8, Harvard DNS server, then all the videos in line and the Okay. videos are playing. Okay, now again I'm going to share with you. This is you. This is your. Now Adya? अभी भी नहीं. Okay, just wait. Now show the Watching what is an IP address? IP addresses represent where you live on the internet and are needed to send messages to computers outside of your network. Imagine when you send a letter to your great aunt Mew. You put her address on the front of the envelope and the return address on the back. You send the message and expect to get a reply. This is what is going on with your computer right now as you're watching this, except the destination address of the thousands of messages you're sending every minute is some YouTube server, and the return or source address is the computer in front of you. Just like with house addresses, you won't find two computers connected to the internet with the same address. Somewhat differently though, computers don't use geographical addresses, but rather use a string of numbers called an IP address. These IP addresses are how the devices involved in passing the message know who is sending what to whom. Not including source IP when sending a message over the internet would be like sending a letter with no return address to a complete stranger who has to deal with billions of letters every minute and expect to get a reply. Yeah, good luck with that. So, quick recap. IP addresses are a unique series of numbers which identify computers on the internet. Want to watch YouTube? You need an IP address. Want to send an email? You need an IP address. Want to browse gifs of adorable cats? You need an IP address. Cool. Moving swiftly on. If you look at an IP address in a bit more detail, you'll notice that it's basically phone numbers separated by dots. Yes, Bhavya. Sir, voice is not coming. Voice is not coming. It's very But low. it's full from my system. In my system it is full. This is you. Now- This is your computer, and this is you watching what is an IP address. IP addresses represent what you Getting live on the voice? internet and are needed to send messages to computers outside of your network. Okay, leave it. So no, maybe in this video sound is not good. So I'm going to change the video. Screen is visible, Adya. In this video, Now we will audio cover video both. web browsers and web addresses. Web browser is a software for accessing information on the web. Exploring the web is also known as web surfing. Some popular browsers are Internet Explorer, Google Chrome, etc. When we surf the net, we are usually taken to different sites. Each site or web page has a unique web address which is called as URL or Unique Resource Locator. It looks something like this. As you see, it has got multiple parts such as protocol, domain, etc. Let's look at each one of them. The first part is the protocol, which is a system of rules that defines how something is to be done. In computer terminology, a protocol is usually an agreed upon. What happened, Adya? The video is not visible, only voice is coming. Or standardized Wait. method for transmitting. Why it is doing? Only voices was coming, no video was Wait. visible. Wait. Now it is visible. Yes, sir. Okay. In this video, we will cover web browsers and web addresses. Web browser is a software for accessing information on the web.
Exploring the web is also known as web surfing. Some popular browsers are Internet Explorer, Google Chrome, etc. When we surf the net, we are usually taken to different sites. Each site or web page has a unique web address which is called as URL or unique resource locator. It looks something like this. As you see, it has got multiple parts such as protocol, domain, etc. Let's look at each one of them. The first part is the protocol, which is a system of rules that defines how something is to be done. In computer terminology, a protocol is usually an agreed upon or standardized method for transmitting data and establishing communication between different devices. Internet uses multiple protocols. Some of the most common ones are HTTP or Hypertext Transfer Protocol are set of rules for transferring files such as text, graphic images, etc. on the World Wide Web. Nowadays, HTTPS is used, which is encrypted version of HTTP. Telnet is used for remote login to any computer or network. FTP or File Transfer Protocol is used to transfer files over the net. Next comes the domain name, which is the address where internet users can access your website. Any name registered with the DNS is a domain name. Domain naming system is the phone book of internet. It translates domain name to IP addresses so that the browsers can load the internet resources. An IP version 4 address is a series of 4 numbers separated by a full stop. Each number can be anything between 1 to 255. With the growth of internet, the address size is now increased from 32 bits to 128 bits to cover for future needs. Domains are organized into simple tree structure or hierarchy. Top-level domain names are like .com or .org. Within it, you can register your root domain name. You can then opt to have a subdomain if you want to further organize your content. The path typically refers to a file or directory as shown. When file is not specified, then the web browser automatically picks home page, which is typically a file called index or default. Okay, student. Now some student were raising hand. Who just I'm going to check. Not now. Okay, now clear Adya, all of you? Okay, now I'm taking your attendance first because time is going over. Okay, now clear students? मास्टर से मेरी क्लास खत्म हो गई ध्यान So we will do exercise of this chapter in next lesson, right? And I will share those notes in Adonext. Okay, sir. Sir, we have to write notes in notebook. Yes, 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 Okay, sir. yes. Okay, students, bye.
थोड़ा बड़ा बड़ा ढंग से तो हमसे डालना नहीं था, ताकि मैं आपको पता चल जाए कि हाँ हमने काम करा है कुछ ढंग से। मम्मी लॉबी की स्पेलिंग क्या होगी? लॉबी की स्पेलिंग हिंदी में लॉबी। गुड आफ्टरनून टू ऑल। Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Sir. गुड आफ्टरनून। Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. अरे आप लॉबी स्पेलिंग बता दो। Okay. After लाल की मात्रा ऊपर बिंदु है। a long day of the day, we come at session 5th. 5th सेशन जब भी कभी होता है, मैं हमेशा देखता हूँ बच्चे बहुत कम हो जाते हैं, पता नहीं क्यों। या तो नेटवर्क उन्हें भगा देता है, या सर सबको नींद आती है। हो सकता है, मे बी अ रीजन, क्योंकि लैपटॉप या मोबाइल आगे बैठे रहना ये एक इश्यू है, होता है, ठीक है। लेकिन यस, भव्या वर्मा को तो अभी भी शायद नींद आ रही है। भव्या, ओके, एंजॉय बेटा, सेशन एंजॉय करो, चाहे कोई सा भी सेशन हो। नींद सबको आती है, कंट्रोल करके रखते हैं सब लोग। बिल्कुल टाइम हो जाता है आपका 12:30, 12:30 बज जाते हैं लगभग। इस टाइम नींद आती है सबको, पहली बात तो इस टाइम मुझे सब पता है। तो ये चाहे स्कूल हो, चाहे अभी आपका घर हो, चाहे कोई थर्ड प्लेस हो, सबको नींद आती है इस टाइम। और जो टीचर सामने पढ़ाता ना, वो पता कैसा लगता है आपको, बस किसी तरह से ये चले जाएं और हम जल्दी से बिस्तर में आराम से सो जाए। ओके स्टूडेंट, हम थे चैप्टर नंबर 6 में, ठीक है। होपिंग दैट कि आप सबको चैप्टर अच्छा लग रहा होगा। अच्छा, एक और चीज आने हो जाएंगे, ठीक है। जो जिस नंबर पे आपने भेजा था ना, उसी चैप्टर नंबर पे आपको नंबर मार्क्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो जिसको क्वेरी हो तो उसी नंबर से मेरे को डाउट पूछना, मैं इधर उधर नंबर से नहीं बता वॉइस इज नॉट क्लियर। Sir, your voice is not मैं clear. कह रहा Can हूँ you जो मेरे को repeat? आपने टेस्ट, यस बेटा, मैं कह रहा हूँ जो आपने मेरे को टेस्ट पे सॉल्यूशन पेपर भेजे थे ना आपने, वो आज से चेक होने स्टार्ट होंगे और वो उसी का रिप्लाई उसी पेपर नंबर पे आपको रिप्लाई आएगा, मार्क्स विद योर रिमार्क्स। ओके, ओके स्टूडेंट, हमारी एक्सरसाइज कौन सी चल रही थी? 6.3। फैक्टराइजेशन मेथड इसमें मेन मेथड था। होपफुली सबके क्वेश्चन हो गए होंगे इसमें। जो क्वेश्चन नंबर 3 या 4 था क्वेश्चन, वो मैंने होमवर्क दिया था, कुछ पार्ट्स करवाए थे, बाकी पार्ट्स आपको होमवर्क के लिए दिए थे और कहा था 5th क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन करा था, लेकिन कहा था इसको मैं ही करवाऊंगा नेक्स्ट सेशन में। तो आपका नेक्स्ट सेशन जो है आज है। किसी को कुछ पूछना है? एनी क्वेरी? किसी को कोई क्वेरी हो? ओके, नो क्वेरी बेटा। फैक्टराइजेशन मेथड होपफुली सबको समझ में आ गया होगा और मोस्ट प्रोबेबली हम मंडे को शायद नेक्स्ट अपना मेथड करें जो डिवीजन मेथड है। थोड़ा सा लेंथी और टिपिकल भी है, ठीक है, लेकिन हम ऐसा करेंगे कि ऐसा समझाने की कोशिश करेंगे कि आपके समझ में आ जाए, ठीक है। मैं सिर्फ कोशिश कर सकता हूँ, ओके, समझना एट द एंड आपको ही है। कोई कितना भी अच्छा पढ़ा ले, बेस्ट पढ़ा ले, लेकिन समझना एट द एंड आपको ही है, ठीक है। यस, हु इज दिस? यस बेटा, 1 मिनट है। Sir, you told that you will take the MCQ one question. 1 मिनट बेटा, 1 मिनट बस। ओके, मैंने सबको म्यूट कर दिया है। अब जिसको प्रॉब्लम है वो हैंड रेज करे, क्योंकि सब एक साथ पूछते हैं तो बेटा ये नहीं पता चलता कौन बोल रहा है, ठीक है। यस,
भव्या। Sir, can you tell which chapters it in PA1? PA1, yes बेटा, chapter number 1 and chapter number 2 only chapter number 1 and chapter 2, not chapter 3. ठीक है, chapter 1 और chapter 2 इसका हम एक MCQ टेस्ट भी लेंगे in the next week. Okay. बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा लाउडली बोलो। बेटा अभी भी आवाज नहीं आ रही है, सॉरी बेटा। आप पूछ रहे हैं चैप्टर कौन सा आएंगे? चैप्टर 1 और चैप्टर 2। चैप्टर 1 का नाम है रेशनल नंबर और चैप्टर 2 का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओनली दीस टू चैप्टर्स कम्स इन PA1। ओके, और इसके अलावा जो हमने चैप्टर चल रहा है वो नहीं आएगा अभी। ओके आद्या, एनी डाउट बेटा? सर मैं ये पूछ रही थी, जैसे जब हम लोग टेस्ट देंगे तो हमें अलग से नोटबुक बनानी होगी या? नहीं बेटा, अभी जो PA वाले टेस्ट पेपर होंगे उसका अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है किस वे में होंगे, कैसे होंगे, ठीक है? तो उससे रिलेटेड अभी कोई क्वेश्चन ना पूछे तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है? क्योंकि अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है उससे रिलेटेड। सर और MCQ वाला टेस्ट नोट इसी नोटबुक में करना होगा ना? यस बेटा, MCQ वाला, MCQ टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो क्लास में MCQ होगा बेटा वो कुछ इस तरीके से होगा कि एक क्वेश्चन 10 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, उसमें MCQs होंगे और उसका एक आंसर करेक्ट होगा। आपको क्या करना है, अपनी क्लास टेस्ट में ही भेजना है वो, लेकिन जो सॉल्यूशन होगा वो तो भेजना ही भेजना है, प्लस जो आप सॉल्यूशन करोगे, हालांकि आप रफली करोगे लेकिन करोगे वो भी भेजना है। क्वेश्चन नंबर 1 जो भी उसका सॉल्यूशन आप करते हो, रफली करते हो, फेयरली तो करोगे नहीं क्योंकि MCQs है, उसे रफली करोगे वो भी नोटबुक में, क्लास नोटबुक में। इसके बाद वो क्वेश्चन नंबर 1 उसका जो आंसर होगा उसके सामने लिख दोगे, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ABC करके, ठीक है? ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन करोगे रफली, उसको बाद में उसका क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन लिख दोगे ऐसे। तो जब वो होगा टेस्ट कंडक्ट करवाऊंगा उससे एक दिन पहले मैं सब इंफॉर्मेशन आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है? ओके। एनीबॉडी एल्स? यस कमलप्रीत। कमलप्रीत, Sir, when will be the exams? yes बेटा। Sir, when will be the exams? When will be the exam? It is very difficult question. बेटा अभी कोई अपडेट नहीं है अबाउट द डेट। डेट के बारे में कोई अपडेट नहीं है बेटा, जैसी होगी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है? एज सुन एज पॉसिबल जैसी पता चलेगा आपको बता दिया जाएगा। ओके बेटा। दीक्षांत अरोरा। यस बेटा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून बेटा। गुड मॉर्निंग बिकम्स गुड आफ्टरनून। सर मैथ्स, सर PA1 में सर मैथ्स से कितने चैप्टर आएंगे? अच्छा बार बार देखो बेटा, अभी बताया था PA1 में मैथ्स में 2 चैप्टर आएंगे, फर्स्ट एंड सेकंड। NCERT का फर्स्ट चैप्टर एंड NCERT का सेकंड चैप्टर। ओके, थैंक यू सर। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट नहीं आएगा, क्लियर टू ऑल? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट नहीं आएगा। और किसी को कोई डाउट? बेटा कमलप्रीत अगर कोई डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड, अपना हैंड रेज रहने दीजिए, अदरवाइज पुट्स डाउन। सेम फॉर भव्य वर्मा। ओके प्रार्थना अरोरा। और आपने पूछा है बेटा कौन से मंथ में होंगे? बेटा अभी अपडेट नहीं है, जैसे अपडेट होगा कुछ आपको बताया जाएगा। ओके, नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट आवर सेशन विद एक्सरसाइज 6.3। मुझे पता है बहुत से बच्चों ने कर लिया होगा, लेकिन प्लीज इधर कंसंट्रेट करिएगा। क्यों? क्योंकि हमें हमेशा कुछ ना कुछ एक पॉइंट मिल जाता। पता है हमें क्या होता है? देखिए आप अगर सपोज करिए आपने एक बुक ली है, वो मैथ्स की बुक है। सपोज करिए आपने 7th क्लास की एक मैथ की बुक ली है। विच क्लास? 7। आज तो 8th में आपने 7th क्लास की एक बुक ली, आपने वो पूरी बुक पढ़ डाली। अब पढ़ने के बाद आपको तो आता है 7th क्लास का सारा, लेकिन आपको पढ़ने के बाद सिर्फ दो पॉइंट नए पता चले गए। वो पॉइंट कुछ भी हो सकते हैं।
आपको अगर एक बुक खरीदने के बाद उसमें कोई कितने कम से कम एक पॉइंट अगर नया पता चल गया ना, पूरी मैथ का एक पॉइंट नया पता चलेगा, मीन्स आपकी वो जो बुक परचेज करी है ना वो सक्सेसफुल हो गई। ठीक है, ऐसे हमारा सेशन भी होता है। सेशन में अगर हमने आज एक पॉइंट या 2 पॉइंट भी नए सीखे ना, मीन्स आपका सेशन बिल्कुल सक्सेसफुल हो गया। ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग आवर एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 6.3। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 तक हमारे कंप्लीट हो गए थे बेटा। 4 में हमें फैक्टराइजेशन मेथड करना था, जिसमें हमें पेयर बनाने होते थे। पेयर को 1 गिन लेते थे, और जो पेयर बनाता था वो अंडर रूट से बाहर हो जाता था, और जो पेयर नहीं बनाता था वो अंडर रूट के अंदर ही रहता। लेकिन अभी आपके में ना सिलेबस में पेयर के अंडर रूट के अंदर वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5 है, थोड़ा ध्यान से समझना। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द for each of the following numbers find the smallest whole number by which it should be multiplied so as to get a perfect square number. Also find the square root of the number so obtained. Okay student, एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से समझना, बहुत इजी है। एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपको 252, और ये बोला गया है इसमें किस नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं, वह स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा जिसे 252 पे मल्टीप्लाई करो और एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ओके, पहले तो नंबर बताना, फिर अगर वो ऐसा बनता है तो किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा ये भी बताना है। तो बेटा जब भी आपके पास मल्टीप्लाई और डिवीजन के क्वेश्चन आएंगे आप फैक्टराइजेशन मेथड यूज करोगे, और जब भी आपको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन आएंगे तो आप कौन सा मेथड यूज करोगे, डिवीजन मेथड। ओके, तो बेटा क्या करना है, हमें 252 में एक ऐसे नंबर की मल्टीप्लाई करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए। ठीक है, कुछ नहीं करेंगे इसमें, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे। तो फैक्टर करा तो बेटा क्या आया, 252 से फैक्टर करना स्टार्ट करो। 252 सबसे पहले 2 से डिवाइड हो रहा है बेटा, इतना भी ध्यान रखना, अगर ये 7 से डिवाइड हो रहा है तो आप सबसे पहले 7 से जाके डिवाइड नहीं करोगे इसे। ओके, सबसे पहले 2 से ही करोगे। तो 2 से डिवाइड करोगे तो बेटा 126 आएगा। अगेन 126 को 2 से डिवाइड करोगे तो 63 आएगा। अगेन 63 2 से डिवाइड नहीं होता लेकिन 3 से होता है, तो 3 से करेंगे तो 21। अगेन 3 से डिवाइड करेंगे तो 7, एंड लास्ट 7 से डिवाइड कर देंगे तो 1 आ जाएगा। फाइनली 252 के फैक्टर क्या आ रहे हैं बेटा, 2, 2, 3, और 7। फाइनली हम उसके क्या लिख सकते हैं, जो आपके सामने हाईलाइटेड पार्ट है ये लिख सकते हैं। अब इसमें से बेटा पेयर किसका बन रहा है, 2 और सिर्फ 2 का पेयर बन रहा है। ओके, 3 का भी पेयर बन रहा है, तो 2 और 3 का तो पेयर बन रहा है। ओके, जो पेयर बना रहे फाइन, उनके साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, इसमें उनको एज इट इज रहने देंगे। पेयर किसका नहीं बन रहा है बेटा, 7 का। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किसकी मल्टीप्लाई करनी है तो उसका पेयर बना दो, मींस यहाँ पे 7 का कोई पेयर नहीं बन रहा है। अगर मल्टीप्लाई की बात करिए तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर डिवाइड की बात आ रही है तो 7 से ही डिवाइड कर दो। तो बेटा हमें यहाँ पे क्या करना है, 7 का पेयर बनाना, और 7 का पेयर बनाने के लिए एक 7 ऑलरेडी है, एक 7 और चाहिए। तो हमें क्या कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, ये तो हमारा पहले से है। पेयर किसका नहीं है, 7 का। पेयर बनाने के लिए एक 7 और चाहिए, तो एक 7 की और मल्टीप्लाई कर दो, किसमें, 252 में। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 1764, 1764। ओके, अब सबके पेयर बन गए, 2 का भी पेयर बन गया, 3 का भी पेयर बन गया, 7 का भी। तो बेटा ये किसका अंडर रूट होगा, इसका अंडर रूट क्या होगा बेटा, 2 मल्टीप्लाई, देखो पेयर बन गया 2 का, तो 2 को एक बार लिख लेंगे, 3 को भी एक बार लिख लेंगे, और 7 को भी एक बार। और ये फाइनली आंसर कितना, किसका अंडर रूट होगा, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। ओके, अच्छा कुछ बच्चे लेट आए होंगे तो मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन सिंपल सा ये है कि 252 है, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए उसमें किसी नंबर की मल्टीप्लाई करनी है, वो भी स्मॉलेस्ट नंबर की। तो किसकी करेंगे ये पूछा गया हमसे, तो हम किसकी करेंगे बेटा, पहले इसके फैक्टर निकालेंगे, जिनका पेयर बन रहा है वो फाइन, उनको कुछ नहीं करेंगे। जिसका पेयर नहीं बन रहा है तो उसका पेयर बना देंगे। ठीक है, पेयर इसमें 7 का नहीं बन रहा, पेयर में हमें 2 डिजिट्स चाहिए होती थी, इसलिए हमने 7 की मल्टीप्लाई कर दी, और 7 की मल्टीप्लाई करते ही 252 में कितना आ गया, 1764। और 1764 किसका अंडर रूट होता है बेटा, 42 का। वो कैसे पता चला, 2 का पेयर 2, 3 का पेयर 3 और 7 का पेयर 7। 2 मल्टीप्लाई 3 6 एंड 6 7 जा 42। ओके, बताओ, अब बताओ पहले जिनको समझ में आया, गिव मी अ थंबनेल दो सब पहले तो। ओके, बहुत से बच्चों को आया समझ में।
अब मेरे को वो बच्चे हैंड रेज करो जिनको समझ में नहीं आया। अब यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे हैं ना जिन्होंने थंब अप्स करा है, ना ही कोई हैंड रेज करा हुआ है। अब मैं नाम नहीं ले रहा हूं फिलहाल, लेकिन ट्राई टू पार्टिसिपेट बेटा। जिनको प्रॉब्लम है बेटा पूछो फटाफट। इस क्वेश्चन में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, इसके बाद हम तेजस, यस सर। यस बेटा, आपने हैंड रेज करा था, आप डाउन कर दिया। कोई डाउट बेटा? सर जब एंड में मुझे नहीं समझ आया। क्या समझ में नहीं आया बताओ बेटा? सर जब आपने 252 को मल्टीप्लाई किया 7 से, उसके बाद समझ नहीं आया। एक मिनट, अभी बेटा अभी आप अपने आप को अनम्यूट मत करना। बेटा अपने आप को अनम्यूट मत करना, मैं अभी बता रहा हूँ। अभी लाइट आ रही है? यस बेटा तेजस, देखो इधर, आपको क्या समझ में नहीं आया आपको पता चल जाएगा अभी, ठीक है? आपको क्या समझ में नहीं आया? आपने कहा लास्ट में, देखो आपको ये पता चल गया बेटा किसका पेयर नहीं बन रहा है? तेजस, यस सर। किसका पेयर नहीं बन रहा है? 7 का। तो 7 का पेयर बना दो। 7 के पेयर बनाने के लिए हमें कितने और 7 चाहिए बेटा? 2 1 नहीं बेटा, एक 7 चाहिए, क्योंकि एक 7 ऑलरेडी है हमारे पास। पेयर बनाने के लिए 2 7 चाहिए होते हैं, लेकिन एक 7 ऑलरेडी है, तो एक 7 अपनी तरफ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 252 में 7 की मल्टीप्लाई करी तो 1764 आ गया बेटा। यहां तक कोई प्रॉब्लम बेटा? नहीं सर। तेजस, नहीं सर। अब क्या करेंगे बेटा? इसका स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है। तो पेयर में किस किस का पेयर बन रहा है? 2 का पेयर बन रहा है तो 2 लिख लेंगे, 3 का पेयर बन रहा है तो 3 लिख लेंगे, और 7 का पेयर हमने अपनी तरफ से बनाया तो 7 लिख लेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 कितना होता है? 42। नाउ इट इज क्लियर और नॉट? यस सर। ओके फाइन। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, अच्छा मुझे पता है बहुत से बच्चों ने इसमें कर लिए होंगे पार्ट्स, ठीक है? अब मैं आपसे क्वेश्चन रैंडमली पूछ रहा हूं, 1 मिनट दूंगा करने के लिए। 6 पार्ट, 6 पार्ट स्टार्ट करो सब। 6 पार्ट लिखा हुआ है 768। वो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है जिसकी मल्टीप्लाई 768 में करे और वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? ओके, आद्या श्रीवास्तव, रेज हर हैंड। ओके करो सब इसको फटाफट, टाइम है सबके पास। 768 में किसकी मल्टीप्लाई करें कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए? ओके, आद्या ऑलरेडी रेज हर हैंड। बेटा वेट अ सेकंड, ओके? Okay, Karthik also raised his hand. One more, that is Tanmay Shukla. क्योंकि इस क्वेश्चन के लिए आद्या ने सबसे पहले हैंड रेज करा था, तो आद्या से पूछते हैं। ओके यस बेटा आद्या। और बेटा बाकी बच्चे 1 मिनट बेटा वेट करो, आद्या वेट करो। बाकी बच्चे जिनका नहीं हुआ है, बिल्कुल अभी भी है थोड़ा सा टाइम। यस, शुभ मिश्रा आल्सो देयर। ओके
मीन्स टाइम ओवर हो गया है, सब बच्चों ने कर लिया है। ये लास्ट पार्ट था आपका, तो इसको एक्सप्लेन और इसका आंसर दे रही हैं आद्या श्रीवास्तव। यस बेटा आद्या। सर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। यस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। बेटा पहले क्वेश्चन बताओ क्या है। सर 768 का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन से स्क्वायर रूट निकालना था और हमें उस नंबर से मल्टीप्लाई करना था जो उसको परफेक्ट स्क्वायर में बदल दे। यस वेरी नाइस। बाकी बच्चे आद्या को ध्यान से सुने, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है आपको मिल सकता है जो नया हो। यस बेटा आद्या, आप इसका सॉल्यूशन बताओ। सॉल्यूशन में क्या करते हैं और कैसे करते हैं ये बताना है आपको सिंपल वर्ड्स में। सर पहले 768 को 2 से डिवाइड किया तो 384 करते करते ऐसे सर 8 फैक्टर्स फाइंड कर लिए शुरू में। सर 8 टाइम्स हमने 2 से डिवाइड किया yes. और लास्ट में मेरा 3 बचा तो मैंने 3 से डिवाइड करके 1 ला दिया लास्ट, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन मल्टीप्लाई। तो सर मतलब इसमें 8 टूज हैं तो मतलब 4 पेयर बन गए टूज के। यस 2 के 4 पेयर्स और 3 अकेला बचा। तो हम इसमें अगर 3 को मल्टीप्लाई करके 3 का भी पेयर बना देंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। जब हम लोग 768 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2304 आएगा। ओके और फिर जब हम लोग 2304 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2304 का स्क्वायर रूट आएगा। मैं सर एक मिनट 48 आएगा बेटा। हाँ सर 48 I took it out 48। वेरी नाइस एक्सप्लेन बाय आद्या श्रीवास्तव। बाकी बच्चे थोड़ा ध्यान से देखें और सुने और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार भी रहना उसके बाद, ठीक है बेटा। क्या क्वेश्चन था 768। पहले फैक्टर निकालेंगे। अच्छा जब भी मल्टीप्लाई और डिवीजन की बात आएगी तो फैक्टराइजेशन मेथड ही करना है। ओके फैक्टराइजेशन मेथड यूज करा हमने और इसके फैक्टर आगे बेटा 2 आ गया 8 बार, मींस 2 हमारे 8 बार आ रहा है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 2 और एक 3 है, मींस मल्टीप्लाई 3। पेयर 2 के तो पेयर बन रहे हैं। ओके पेयर किसका नहीं बन रहा उसको हिट कर रहे हैं, पेयर 3 का नहीं बन रहा है बेटा। तो हमारे पास एक 3 है और एक 3 और चाहिए, तो एक 3 की मल्टीप्लाई कर दो 768 में। जब 768 में 3 की मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा आएगा क्या आपके पास 2304 मींस 2304। फिर इसका अंडर रूट भी फाइंड आउट करना है जो 48 होगा। ओके होपफुली सबको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। नाउ एक पार्ट और करते हैं। अब प्लीज पुट योर हैंड्स डाउन और प्लीज आद्या बेटा यू एक्सप्लेन वेरी नाइस एंड म्यूट योरसेल्फ। पहले तो आपने हैंड्स डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब देखते हैं कौन आंसर देता है। क्वेश्चन है बेटा इस बार मैं ले रहा हूं, इस बार लेते हैं बेटा फोर्थ पार्ट 2028 2028 2028 2028। ओके जिसका हो जाए और वो आंसर देना चाहता है तो चैट में भी आंसर दे सकता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 के लिए अंश राठौड़ ने दिया हुआ था आंसर विच इज करेक्ट। नाउ 2028 yes again I got an answer from Adya Srivastava. Hopefully this is answer for the 2028 Adya। yes सभी बच्चों का सेम आंसर आ रहा है, मींस देखते हैं चेक करते हैं। अच्छा इसका आंसर कौन देगा जिसने हैंड रेज करे। यस शिवांश बेटा, शिवांश
सर अभी बस निकालता हूँ, वो गलती से 100 कर दिया, सॉरी सर। ओके बेटा, म्यूट योरसेल्फ बेटा। ओके, तन्मय शुक्ला। बेटा तन्मय, तन्मय आर यू देयर? बेटा आंसर आ गया आपका 2028 वाले का। ओके, यू आर नॉट रेस्पॉन्डिंग। यस बेटा अरमान। अरमान, यस सर। बेटा व्हाट्स योर आंसर? सर वो पहले का रेज रह गया था। ओके बेटा, प्लीज पुट योर हैंड्स डाउन नाउ एंड म्यूट योरसेल्फ बेटा। ओके, दीक्षांत अरोरा इज देयर। दीक्षांत हो गया बेटा आपका? बेटा हो गया सर। क्या आंसर है बेटा 2028 वाले का? सर सर वी विल मल्टी सर देयर इज नो पेयर ऑफ 3। ओके बेटा 3 मीन्स हमारे जो फैक्टर बनेंगे 2028 के, वो फैक्टर बताओ मेरे को। सर 2 मल्टीप्लाई बाय 13, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13। बेटा फैक्टर आपके गलत आ रहे बेटा, एक बार फैक्टर दोबारा बताओ मेरे को। सर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 13। यस, नाउ इट्स करेक्ट। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13। बेटा पेयर किसका बन रहा है यहाँ पे दीक्षांत? सर 2 and 3। ओके 2 and 13 बेटा। 2 and 13 सर गलती से हो गया। यस, 2 and 13 का पेयर बन रहा है। पेयर किसका नहीं बन रहा है? 3 का पेयर नहीं बना है। जिसका पेयर नहीं बनता है उसी को हम लेते हैं और उसी को पेयर बनाने के लिए उसी के जैसे एक और नंबर की मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट इज 3। 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे किसकी? 2028 की। और जब 2028 की मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से तो आ जाएगा 60684। अब बेटा पेयर किस किस का बन रहा है? 2 का भी बन गया, 3 का भी बन गया, 13 का भी बन गया, तो इनकी मल्टीप्लाई आपस में कर देंगे। जो आंसर क्या हो जाएगा? 78। फाइनल आंसर 78 है। होपफुली दिस इज क्लियर टू ऑल। ओके, बहुत से बच्चों का आंसर आ चुके हैं ऑलरेडी। अब मैं इनके नाम अगर लेता हूं, यस, दृष्टि त्यागी, अंश राठौर, इश्मीत कौर, इस्मित कौर इज नॉट, इस्मित कौर ने आंसर नहीं दिया है फिलहाल। प्रार्थना अरोरा, आद्या श्रीवास्तव, कार्तिकी पुरवर, इश्मीत, सभी बच्चों ने लगभग आंसर सही दिया है। ठीक है, अंश राठौर। ओके, नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट। होपफुली आप ये क्वेश्चन आप कर लोगे, आपको सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। ओके बेटा, इस पे क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो प्लीज अभी वेट करो, थोड़ा क्वेश्चन नंबर 6 एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद आपकी क्वेरी ले लेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास क्वेश्चन अभी बहुत है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। देखो बेटा क्या है बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड सो एज टू गेट अ परफेक्ट। अच्छा, इस बार डिवाइड का आ गया, डिवाइड का या मल्टीप्लाई है, बहुत प्रोसेस सेम रहता है। प्रोसेस सेम इन द सेंस पहले फैक्टराइजेशन करेंगे, जैसे 252 है, फैक्टराइज करो बेटा 252 का, तो कितना आएगा? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। अब डिवाइड का मतलब होता है चीजों को हटाना, और मल्टीप्लाई का मतलब होता है चीजों को बढ़ाना। तो डिवाइड में क्या करना है बेटा? हमें जो पेयर, जिसका पेयर नहीं बन रहा है ना, उसका पेयर, उसको हटा देना है, उस नंबर को। 7 का पेयर बन नहीं रहा है तो हम बेटा 252 को 7 से डिवाइड कर देंगे। बेटा जब
252 को 7 से डिवाइड कर दोगे तो क्या बचेगा? देखो फैक्टराइजेशन में से 7 को हटा दो तो क्या बचेगा? 2 2 3 3, मतलब 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ओके। 2 2 जा 4, 4 3 12 एंड 12 3 जा 36 बचेगा। तो 252 को 7 से डिवाइड करोगे तो 36 बचेगा, और 36 किसका अंडर रूट होता है बेटा? 6 का, ओके। एक क्वेश्चन और बता रहा हूं मैं, फिर आपकी बारी। अच्छा 2925, इसके भी फैक्टर करेंगे, तो फैक्टर करने पर बेटा हमें क्या मिलेंगे? 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 13, और पेयर किसका नहीं बन रहा है? 13, मींस 2925 को हम 13 से डिवाइड कर देंगे। अच्छा बेटा डिवाइड एक्चुअल डिवाइड करके नहीं दिखाना है आपको, जस्ट रिमूव 13 फ्रॉम द फैक्टराइजेशन, और बचा क्या? 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, फिर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपस में 225 आएगा, और 225 किसका स्क्वायर रूट होता है बेटा? वो आपको पता है किसका होता है? 25 का, ओके। नाउ नेक्स्ट पार्ट, पहले तो मेरे को इतना बताओ क्वेश्चन नंबर इतने में किसी को कोई डाउट है तो? अगर डाउट है तो ठीक है, अदरवाइज प्लीज पुट योर हैंड्स डाउन। पहले तो हैंड्स डाउन करिए। ओके सबको समझ में आ रहा मींस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट, और इसके लिए हैंड रेज करना। अब क्वेश्चन है बेटा डिवीजन, ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर क्या है कि इसमें डिवाइड कर दें और हमारा आंसर आ जाए। और मैं पहला पार्ट ले रहा हूं बेटा, हम पार्ट लेंगे 6 पार्ट, 1620 मींस 1620 को किससे डिवाइड करूं कि ये परफेक्ट स्क्वायर रूट हो, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, और किसका बनेगा ये भी बताना है। 1620, यस क्विकली 1620। बेटा जब हम क्वेश्चन करते हैं ना, आप करते रहो बस मेरी बात सुनते रहना। जब क्वेश्चन करते हैं तो हम जब अपना क्वेश्चन कर रहे होते हैं हमें क्विकली तो करना होता है, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि हमारा कंसंट्रेशन सिर्फ क्वेश्चन में रहे। क्यों? क्योंकि मैथ में कैलकुलेशन बेस्ड होता है, क्विकली कर रहे हो तो क्वेश्चन में कैलकुलेशन नहीं होना चाहिए गड़बड़, ठीक है। और हमें पहला आंसर मिल गया है फ्रॉम कार्तिकेय, फर्स्ट हैंड कार्तिकेय। यस बेटा कार्तिकेय। Yes, sir. Sir, the sir answer is 5. Sir, 5 will be remaining, and the factors are 2 into 2 into 3 into 3 into 3 into 3 into 5. Yes, correct. Factors is correct. Means 2 multiply 2 multiply 3 multiply 3 multiply 3 multiply 3 and multiply 5 means 2 कितनी बार आ रहा है? 2 बार। 3 कितनी बार आ रहा है? 4 बार। और 5 कितनी बार आ रहा है? सिंगल बार। तो कार्तिकेय किसका पेयर नहीं बन रहा है? सिर्फ 5 का नहीं बन रहा है, तो हम 1620 को 5 से डिवाइड कर देंगे। अच्छा बेटा मेरे को ये बताओ कार्तिकेय, बाकी बच्चे भी ध्यान से सुनो, जब 1620 को 5 से डिवाइड करोगे तो कैसे डिवाइड करोगे इसे? सर सिंपली हम 2 इंटू हम 2 का पेयर ले लेंगे 2, और 3 इंटू 3 को 2 पेयर में ले लेंगे और सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ बेटा आपको एक्चुअल डिवीजन नहीं करना है, सही है। जैसे कार्तिक ने बताया कि अगर मैंने कहा कि अगर 1620 को पता चल गया किस नंबर से डिवाइड करना है 5 से, तो आपको 1620 को 5 से अलग डिवाइड नहीं करना है। जो आपके फैक्टराइजेशन हो रखी है ना उसमें से 5 को रिमूव कर दे, बचा क्या कार्तिक? क्या बचेगा फिर? सर 5 बचेगा। नहीं, जब हम अपने फैक्टराइजेशन में से 5 को रिमूव कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? सर 2 into 2 into 3 into 3 into 3 into 3। यस, मतलब क्या हुआ? जब हम 1620 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई 3, और फाइनली आंसर कितना आ जाएगा? 18। पहले 324 आएगा और उसको उनका फैक्टर मतलब डिवाइड करने के बाद 324 आएगा, और 324 होता है अंडर रूट 18 का। ओके, होपफुली दिस इज क्लियर टू ऑल, ठीक है। और इसके बाद कार्तिकेय प्लीज, वेरी नाइस आंसर, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। और भी बहुत बच्चों ने आंसर दिया है इसका, चैट में देख लेते हैं किस किसने आंसर दिया, कौन कौन एक्टिव है। प्रार्थना अरोरा, शिवांश, these students are active from their side। दृष्टि, खुशी, शिवांश, तेजस, ओके, अंश राठौर, शुभ मिश्रा, अविगा, कार्तिकेय, तन्मय, तेजस, ओके, ये बच्चे एक्टिव है, ठीक है।
बी एक्टिव। ओके, नेक्स्ट एक पार्ट और देखते हैं बच्चों इसका। एक पार्ट और देखते हैं, वो पार्ट होगा बेटा सिंपल सा, लेते हैं थर्ड पार्ट 396। यस बेटा, अब आंसर दो बेटा थर्ड पार्ट के लिए। जो आंसर है, जो क्वेश्चन क्या है 396, किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 396 को कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाए। लेट्स सी किसने हैंड रेज करा हुआ है 396 वाले के लिए। ओके, मैनी स्टूडेंट आर देयर नाउ। तन्मय शुक्ला, आई एम टेकिंग यू। यस बेटा, तन्मय प्लीज। यस बेटा, The answer is your voice is cracking. Answer is 11. 11. You answered 11 beta. Let's check. Because What's the the number answer? will be 2 into 2 into 3 into 3 into क्वेश्चन था बेटा 396 और आंसर है आपका 11 और ये करेक्ट है। हाँ, 11 इज करेक्ट आंसर। तन्मय शुक्ला, आंसर इज करेक्ट। ओके बेटा, फैक्टर क्या क्या बन रहे थे बेटा तन्मय शुक्ला? 6 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11। पेयर किसका नहीं बन रहा है बेटा इसमें? 11। ओके, 11 को यहाँ से रिमूव कर देंगे, बचा क्या बेटा? 2 into 2 into 3 into 3 and we will take हमारा नंबर क्या होगा? 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 3 जा 36 मींस 36 आएगा। 396 को 11 से डिवाइड करने पर 36 आएगा और फाइनली हमारे पास आंसर कितना हो जाएगा? 6। ओके, दिस इज क्लियर टू ऑल। ओके, अगेन many students are active. अंश राठौर, कार्तिकेय, अंश राठौर, तेजस, अरमान, अंश, अविका, अंश राठौर अगेन, सिफत कौर, खुशी, अंश राठौर, कार्तिकेय, सुदंग, दृष्टि। Okay, many students are there who are active. Okay. Now let's see the next question. ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को थोड़ा लेंथी है, समझाने में टाइम लगेगा, इसीलिए इसको आज इतना ही रखते हैं, बाकी करेंगे हम नेक्स्ट सेशन में। उससे पहले आप मेरे को अपनी क्वेरीज बताओ, अगर कोई क्वेरीज हैं तो। यस, नाउ पुट योर हैंड्स डाउन बेटा। ओके तन्मय, लंच टाइम हो गया। तन्मय को ओके, कोई कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता है? यस यस बेटा तेजस, बेटा एनी क्वेरी बेटा तेजस? तेजस आई एम नॉट गेटिंग तेजस। ओके नेक्स्ट दृष्टि बेटा, एनी प्रॉब्लम? Sir, is there any faster way to do this? What calculation? Yes, sir. No बेटा, it is the only the simplest way to do the question. आपको पेयर देखना है, किसी तरह से पेयर देखना है, बस इसमें रूल जो स्टेप्स है उनको ध्यान से ये देखना है कि आप छोटे नंबर से डिवाइड करना स्टार्ट करोगे। कैसे? पहले 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 से ही करोगे, 3 से। आपने गलती से भी अगर मान लो एक नंबर है, सपोज करो 1250, क्या है 1250, ये नंबर जो है 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 5 से भी डिवाइड हो रहा है। अगर आपने इसको 5 से पहले डिवाइड कर लिया तो ये प्रॉब्लम कर सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ प्रॉब्लम होगी, लेकिन प्रॉब्लम कर सकता है। ठीक है,
सिंपलेस्ट वे ये है बेटा, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें हम कोई शॉर्टकट नहीं बना सकते हैं, उसका आपको प्रैक्टिस करने के बाद ही सिंपलेस्ट मेथड आ सकता है, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम बेटा? नो सर। ओके, समझ में आ रहा है बेटा आपको? आप क्योंकि थोड़ा मिड में आए हो और तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है चैप्टर जब मिड में चल रहा होता है, तब भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप किसी भी सेशन के मिड में आप कुछ भी पूछ सकते हैं, ओके। और हमारा एक सेशन बेटा डाउटफुल सेशन, क्वेरी सेशन रहता है जो हमारा कल था, उसमें सिर्फ हम आपकी क्वेरी लेते हैं, क्वेरी चैप्टर 1 जो चैप्टर हो चुके हैं उनसे क्वेरी, और कोई और क्वेरी आपकी हो उसको भी हम ले सकते हैं, ठीक है। Now anybody else who want to ask question? Okay, now everyone is waiting for lunch. It's lunch time. सुबह से सब बैठे हैं। ओके, मैथ्स क्लास एंजॉय कर रहे हो तो पहले तो आज ये बताओ मेरे को, मैंने कभी नहीं पूछा, आज पूछ रहा हूँ, मैथ्स क्लास एंजॉय करते हो या नहीं करते हो? या कोई ऐसा है कि यस सर आ गए थोड़ा पढ़ना है तो पढ़ना है, ऐसा वाला तो नहीं है कोई? अगर ऐसा वाला भी है तो वो भी कह सकता है मेरे से, क्योंकि उसको भी हम ऐसे मोड में ले आएंगे कि वो पढ़ने के लिए थोड़ा हो जाएगा। देखो कोई भी सब्जेक्ट हो, मैं पहले भी बोला था आज भी बोल रहा हूँ, अगर कोई भी सब्जेक्ट हो जब तक आप इंटरेस्ट नहीं लोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। और इंटरेस्ट कैसे लेना है? पहले तो हेजिटेशन दूर, हेजिटेशन को बाहर छोड़ कर आओ, सही है? हेजिटेशन छोड़ कर आओ बाहर, सही है? और अच्छे से पोलाइटली जो भी आपको पूछना है सामने वाले से पूछो, वेदर इट इज इन सब्जेक्ट मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है? जितना आप पूछोगे उतना आपको आएगा, सही है? ऐसे होता है ना, जब कहीं जाते हैं और हमें रास्ता नहीं पता तो हम पूछते ही तो हैं, और जितना पूछते हैं उतना रास्ता क्लियर होता जाता है, ठीक है? नाउ इट्स टाइम टू से बाय बाय, बाय बाय टू ऑल, बी एट होम एंड बी सेफ, ओके? बाय टू ऑल।